All set and all done. I hope आपने frequently asked question part 1, part 2, part 3, part 4 चार के चार part देख लिए रहेंगे. In the part 4 we had started something which was very important for GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal, and वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा था and we stopped in between. Don't worry, वहां पे जो हमने start किया था which was about different drugs, कौन से ड्रग का कौन सा स्टीरियो आइसोमर ज्यादा एक्टिव है. In fact, going further, we were also discussing in that same particular presentation about different diagnostic agents. मतलब कौन सी टेस्ट, कौन सी डिजीज के लिए कौन सा diagnostic test use होता है. And in the past, GPAT, especially in NIPER parallelly, a lot of questions have already turned around that. Anyways, welcome back to this web series of important frequently asked questions. Before we proceed further, a quick review to ensure that you don't miss on to anything. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने ड्रग ऑफ द डे की वेब सीरीज देख ली है. ड्रग ऑफ द डे, एवरी ड्रग इट्स IUPAC, स्टार्टिंग मटेरियल, सिंथेसिस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग एक्सिपिएंट इंटरैक्शन. नॉट ओनली दैट, वो ड्रग पे से पास में क्या क्वेश्चंस जीपैट में आके गए, even that is a part of that particular web series. Where will you find that web series? This same YouTube channel named Dharmesh Mehta GPAT. Don't forget to click on subscribe button and the bell icon. कुछ नहीं मिल रहा है चैनल पे, इनको कॉल कर लो, ये बता देंगे क्या कहा है. Other than drug of the day, boost your basics, which I do write as BOB. For your information, GPAT 21 में 33 questions out of 125 questions, which means 25% of GPAT 21 paper was somewhere around basics. Let it be first year, second year pharmacy, or your 11th 12th standard as well. Most important, श्योर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो वेब सीरीज है वो भूलना मत. टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वेब सीरीज है वो भी भूलना मत. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो तुम मिस ही नहीं कर सकते, because we are discussing about frequently asked questions. For your information, PHARMAELITE has started a premium revision batch for GPAT 22. If you have missed onto anything, उस सब की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. In just 999 rupees, you are getting live lectures, notes, test series, and many more. If you are yet to grab that offer, call them up. Last thing, Play Store पे PHARMAELITE का app already live है. Go to Play Store, just type PHARMAELITE GPAT Academy. आपको app मिल जाएगा and you can download it and enjoy all the free contents. Anyways, बस हो गया promotion. Let's start with the lecture. Alright, last lecture हम लोगों ने QSAR, stereoisomers की बात की थी. कोई specific drugs है, उसका कोई specific stereoisomer active है. जैसे amlodipine था, it was S isomer, right? S था ना? It was S, right? Okay, then metoprolol again is. तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स देखे थे हमने जिनका एक स्पेसिफिक आइसोमर ही एक्टिव था. प्रैक्टिकली 300 350 ड्रग्स में हर एक ड्रग्स की ऐसी स्पेसिफिसिटी बात करना थोड़ा सा टफ है. दैट्स वेयर वी कम इनटू द पिक्चर टू मेक इट इजी फॉर यू. लेट्स गेट गोइंग. आज थोड़ा सा डायग्नोस्टिक टेस्ट पे ज्यादा जोर रहेगा क्योंकि बाकी चीजें टू अ वेरी गुड एक्सटेंट वी कवर्ड इन द last video of our frequently asked question type part 4. तो आज fifth part में diagnostic test पे ज्यादा focus रखेंगे. Starting with this different indications, these are organic diagnostic agents. मतलब आप ये agents use करते हो to identify whether your specific organs are working perfectly. तो अगर मैं बोलूँ आपका spinal cord बराबर काम कर रहा है कि नहीं, what its features are, what its functions are, these are some basic diagnostic agents which you will use to identify whether they are functioning properly. अब वो कौन से टेक्निक से होते हैं? हर टेक्निक का खुद का कुछ नाम है, करेक्ट? हर टेक्निक का कुछ स्पेसिफिक नाम है. सो दिस इज द प्रोसेस. दिस प्रोसेस, जैसे आप बोलते हो द आर्टिस्ट, वो जो मीम घूम रहा था, तो हम बेसिकली ये टेक्निक आइडेंटिफाई यूज करने वाले. ये टेक्निक ये एजेंट को यूटिलाइज करने वाली है टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गन. आई होप तुमको सही समझा. टेक्निक का नाम ये है. टेक्निक में एजेंट यूज होगा ये, और ये एजेंट आइडेंटिफाई करेगा ये ऑर्गन को, वो काम करेगा अराउंड दिस ऑर्गन. दैट्स हाउ द बेसिक सेंस वर्क्स अराउंड. ऑलराइट, सो लेट्स गेट गोइंग. यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे एक एक करके, बहुत सारे टेक्निक्स का नाम याद आएगा. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे उतना प्रिसीजन नहीं है जितना बाकी के टॉपिक्स में था कि भाई 6 में से 4 याद रख लिया, 10 में से 4 याद रख लिया. यहाँ पे उतना नहीं है. यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट. Don't worry, उस पे भी बात करेंगे. We'll cover even that part of it. Starting with the first one, when you talk about iopanic acid. Iopanic acid is a diagnostic agent जो 2 organ के लिए काम करता है.
One is your gallbladder and another is your biliary tract. ये दोनों के दोनों ऑर्गन बरोबर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं. If I want to identify the marker is iopenic acid, the system, the process, the technique is known as cholecystography. Now understand this. I've been saying in the past multiple times, GPAT को लेके काफी important है. Not only GPAT, let it be NIPER, ICT, BITS, Manipal, कोई भी competitive entrance test, जितना important ये पता होना होता है कि क्या पढ़ना है, उतना important ये पता होना है कि क्या नहीं पढ़ना है. If you are investing your time on topics and areas which are not important, जैसे cholecystography is the technique. अब आप ये मत पढ़ते बैठो कि cholecystography कैसे होती है, क्या concentration of iopenic acid यूज होता है, कौन से रूट से दिया जाता है, कितना concentration में दिया जाता है, क्या डोज होता है. नहीं चाहिए. I don't need it. मुझे सिर्फ इतना पता होना है कि iopenic acid is used in cholecystography to examine the organs like gallbladder and biliary tract. That's it. And this may be, don't forget our big. In this big, B stands for biliary tract, I stands for iopenic acid, and G stands for gallbladder. G for gallbladder, B for biliary tract, I for iopenic acid. समझ में आया? कुछ भी mnemonic बनाओ, something which can help you to remember it. That's more than enough. Moving further, talking about other diagnostic agent, which is sodium ditriazote. डाया मतलब दो रहेंगे और आगे ट्राइजोएट. ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ तो एस्टर मोइटी, कोई पूछने नहीं वाला है. It is working on your urinary tract. Obviously somewhere around urinary tract है, उसकी स्टडी है, तो यूरोग्राफी. नाम ये दोनों के काफी इजी है. On same ground spinal cord के लिए दो एजेंट्स है, one is ofendilate and another is metrizamide. Both are for spinal cord, but there are different techniques. One technique uses myelography, another technique is named CNS. Full form क्या है, मेरा बनाया हुआ short form है, ऐसा कुछ नहीं है. Official short form है CNS. Nothing which I have made from my pocket, so don't worry about that. Going further, when you talk about propylidone. Now this has something to do with bronchial tract. Bronchial tract. So this is going to turn around bronchography. Urinary tract का urography. Cholecystosis, which deals around bladder stones and all. Cholecystography. So this technique part of it is roundabout very much easy. ये दोनों का correlation पता होना ज़्यादा important. Going further, iodized oil. Oil में iodine add कर दो uterine tube के साथ. Nothing being specific for the technique. Very important is sodium iothalamate, जो arteries और urinary tracts के लिए, especially arteries के लिए arteriography. Urinary tract है तो urography. Nothing difficult. But एक चीज याद रखना, ये दो कॉलम्स में कुछ भी गड़बड़ मत करना. Most of the time questions would revolve around these two columns. जो प्रोसेस का नाम है, जो टेक्निक्स का नाम है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं. It is mostly correlated, except just two. Rest all are highly correlated. अगर इसमें से भी आप मुझे बोलो कि ज्यादा important कौन सा है, I would say the one of bronchial tract, the one of arteries, and the iopenic acid. Bare minimum ये तीन तो करना ही है. Going further to the next part, डायग्नोस्टिक एजेंट की लिस्ट छोटी नहीं है, डायग्नोस्टिक एजेंट की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है. तो ये जो डायग्नोस्टिक एजेंट की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, ये पूरी की पूरी करनी जरूरी है. इन्युलिन उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. नाउ दिस ऑल आर मोस्टली डाई वो वाला डाई नहीं, DYE वाला डाई, DIE वाला डाई. तो ये जो डाई है व्हिच टॉक्स अबाउट इन्युलिन इज मेजरली फॉर GFR. बहुत बार सुना होगा, GF नहीं बोला, GF and R. उनको सिर्फ GF सुनाई दिया. I said glomerular filtration rate, GFR. So inulin, which is majorly used to identify glomerular filtration rate, बहुत बार आके गया. A typical question of every biopharmaceutics faculty. Very important. Inulin is a marker which is used to identify your GFR. Going further, another most important one, hydrofonium chloride. ये आपने कोलॉजी में भी पढ़ा होगा. It is a diagnostic agent used to identify myasthenia gravis. Equally important. Another most important one, mannitol and aminohippuric acid. Very widely used. बहुत ज़्यादा use होता है to identify the tubular function and the renal plasma flow. मतलब सब कुछ किडनी के अराउंड ही डील कर रहा है. किडनी दोनों मार्कर्स भी राउंड अबाउट किडनी. Going further, you have tolazoline and phentolamine, which is for chromaffin cell tumor. Very important. पास में गेट GPAT 9 पर में एक दो बार ये क्वेश्चन फियोक्रोमोसाइटोमा के वर्ड के अराउंड घूम के आके गया है. Don't forget tolazoline and phentolamine. Stomach और intestinal tract बराबर काम कर रहा है कि नहीं? Histamine, pentagastrin and xylose ज़्यादा important नहीं है to be honest. Methyramine, which is for function of your hypothalamus pituitary gland, सुना होगा सब कुछ. So methyramine comes over there. Betazole is for acidity, diagnosis of achlorhydria.
भूलना मत. Again, most important one, Evans Blue, their favorite question, which is to identify blood plasma volume in body. ये बेसिकली हमारे कंसाइज नोट्स में सारी चीजें हैं. वहां पे 10 पेज है, तो वहां से 10 में से 3 पेज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ टू आइडेंटिफाई हाउ इट इज सपोज्ड टू बी रिटन. द रिमेनिंग 7 पेजेस आर अ पार्ट ऑफ आवर कंसाइज नोट्स. कहाँ मिलेंगे? जस्ट डाउनलोड PHARMAELITE GPAT Academy फ्रॉम द प्ले स्टोर. वहां पे कंसाइज नोट्स सारे के सारे अवेलेबल है, दैट टू जस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 499. अलग अलग सेक्शन वाइज है, यू कैन आइडेंटिफाई इट ओवर देयर. Fluorescein is another dye which is used to identify corneal lesions. Ophthalmology, आँख को लेके जब कुछ होता है तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे रेस्ट करते हैं 3 और ये 2 पार्ट. ये क्वेश्चंस पहले नाइपर में ज्यादा आते थे. ऑफ लेटली इफ यू आर अवेयर, GPAT 21 में 5 क्वेश्चंस थे जो नाइपर के अर्लियर ईयर पेपर से एज इट इज आए थे. आई रिपीट, GPAT 21 में 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो नाइपर के पहले के पेपर से एज इट इज आए थे. सो डू यू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर? आई से यस, वी डू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. Going to the next part, last part for the diagnostic test for different reagents. Don't worry, उससे important चीज आगे आ रही है, which is about stereoisomers. So over here, amyloidal disease पे question बहुत बार आके गया है. Congo red is the dye. When it comes to liver को लेके कुछ problem है तो sodium sulfobromothalin. And lastly, VAPAS kidney renal function. In that case, you have phenol sulfonaphthalene or indigotin disulfide. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपर टू अगेन इंपॉर्टेंट. तो हमने तो सिर्फ 3 स्लाइड्स किए. एज आई टोल्ड यू, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 स्लाइड्स है व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू. सो इफ यू वांट द पेंडिंग पार्ट ऑफ इट, कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे. सो वी स्टार्टेड विद डिफरेंट टेस्ट, एंड इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, उसमें से कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे, व्हिच वाज लाइक इवांस ब्लू एंड ऑल. देन देयर वर फ्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हिच वाज लाइक इन्युलिन, अगेन बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था. देन आपने कुछ डायग्नोस्टिक एजेंट्स पढ़े थे व्हिच वाज इन योर कोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री. मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए आप जो एट्रोफोनियम क्लोराइड यूज करते हो वो. दिस इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इट्स अबाउट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चंस हमेशा बार-बार लगातार आते हैं. गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ड्रग्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स. अब ये पार्ट का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट ये है दैट आपके सिलेबस में जितने भी सारे ड्रग्स हैं, यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफिक 2 स्लाइड्स ही लिए, वहां पे भी 4-5 स्लाइड्स है. आई होप यू आर अवेयर 300 से 500 ड्रग्स है पूरे फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को मिला के. उसमें कायरल ड्रग्स कितने हैं? कायरल मतलब जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होते हैं. अब वो हर एक चैप्टर में अलग अलग होंगे. कहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर होगा, एक कायरल कार्बन, एक असिमेट्रिक कार्बन, कहाँ पे एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन होंगे. तो कैसे बाहर करेंगे? हर एक चैप्टर में एक एक करके ढूंढेंगे, है ना? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. एम आई करेक्ट? नहीं बॉस, ऐसे नहीं करना. वी विल बी स्पेसिफिक. स्मार्ट वे में एक टेबल बना लो, कौन से ड्रग्स है जिसके पास कायरल कार्बन है, उसके पास कितने कायरल कार्बन है, as low as 1 as high as 5. उसके जो कायरल कार्बन है वो कौन से पोजीशन पे लोकेटेड है. दैट्स इट. जैसे तुमको पता होगा तो इथाम्ब्यूटॉल का एक आइसोमर थेरेपेटिक एक्टिविटी देता है और इथाम्ब्यूटॉल का एक आइसोमर टॉक्सिसिटी देता है. अब कौन सा आइसोमर क्या देता है कैसे याद रखेंगे? एंड ऐसा एक ड्रग नहीं है, देयर आर मल्टीपल ड्रग्स व्हिच हैव गॉट 2 डिफरेंट आइसोमर्स विद 2 डिफरेंट एक्टिविटीज. यू माइट बी नोइंग क्विनिन एंड क्विनिडीन. ये दोनों सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स में डिफरेंस है, बट एक एंटी मलेरियल है और एक एंटी एरिथमिक है. आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट. तो बेसिकली ये सारी चीजें चैप्टर वाइज चैप्टर्स तो पढ़ते ही है, बट अदर देन चैप्टर्स यू शुड हैव अ स्मार्ट वे टू फिनिश देम अप जहां पे उनको कंपैरेटिव याद रख सको. एंड डोंट वरी, हमने आपके लिए करके रखा है. जस्ट फॉलो अप ऑन दिस. एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लोराम्फेनिकोल में 2 स्टीरियो सेंटर्स है. दिस इज 2 स्टीरियो सेंटर्स. वेयर आर दे लोकेटेड? बोथ आर आर थ्रियो आइसोमर है. आई होप यू रिमेंबर एरिथ्रो थ्रियो, 3 कार्बन OH एंड ऑल. इथाम्ब्यूटॉल में भी 2 कायरल कार्बन है व्हिच आर SS फॉर थेरेपेटिक एक्टिविटी. RR डेंजर के स्पेलिंग में एंड में R आता है. दिस इज रिस्पांसिबल फॉर टॉक्सिसिटी. क्या टॉक्सिसिटी देता है इथाम्ब्यूटॉल? बोलो बोलो बोलो. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पार्ट 1 में उसके ऊपर डिस्कशन था. यू कैन फाइंड इट on the same YouTube channel. Cycloserine, again cycloserine has 1 chiral carbon which is D isomer. Ephedrine में 2 होता है, 1 or 2 S. Pseudoephedrine is both SS. Identify the difference. Ephedrine to pseudoephedrine गया तो there is no RS. Both are SS only. मिथाइल डोपा की बात करें तो मिथाइल डोपा में 2 chiral carbon है which is RS. मॉर्फिन की बात करें तो 5 chiral carbon. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5. 5, 6, 9, 13, 14. There are 5 carbons in morphine
and all of them are practically asymmetric carbons. Positions याद रखना जरूरी है. Pyridine synchronine में दो था, which was position 8 and 9. You can see one was S, another one was R, one was R and then S. एक एंटी मलेरियल है एंड एक एंटी अरिथमिक है. क्या क्या है आई डोंट वांट टू डिस्कस नाउ. ये हमने डिस्कस किया है पार्ट 2 में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड 4 में भी था थोड़ा. एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट 2 आइसोमर्स अगेन आरएनएस. क्या करो ना ग्रुप कर लो. आरएस वाले कौन से आरएस 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 आरएस. फिर सेपरेट करके एसएस वाले उठा लो. एसएस एसएस सॉरी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफिकली वैसे ही आने वाला है. तो ये सेम क्लासिफिकेशन को आगे और रिफाइन कर लो. आरआर आरएस एसआर एसआर जो मैंने पहले करके बताया था आपको. डेक्स्ट्रोलियो वाला था व्हिच वाज इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पार्ट 4. 5 में थोड़ा सा एक्सटेंशन. into the last 2 slides सेम में आगे के ड्रग्स है, उसके भी स्पेसिफिक आइसोमर्स है, उसके भी कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस है. जस्ट लाइक आई सेड यू इनिशियली, डू दैट वे. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला. एनसेड्स प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स. आइबुप्रोफेन पे पास में क्वेश्चन आके गया है. आइबुप्रोफेन में एस आइसोमर यूज होता है. मैंने यहाँ पे पूरा कैटेगरी लिख दिया. नॉट ओनली आइबुप्रोफेन, जितने भी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है. आइबुप्रोफेन में तो ब्यूटाइल ग्रुप भी था. जितने भी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है सबका एस आइसोमर एक्टिव. राइट. स्टैच्यू. नो जूम इन. Same with tetracyclines, proploxifene and other drugs as well. मतलब गुस्सा आ गया आपको? Okay. All right. Done with frequently asked questions part 5. If you are liking it, if you are enjoying it, and you have not gone through the earlier web series, if you want information about them, or you want to join PHARMAELITE for GPAT 23-24 preparation, which is live online as well as offline, feel free to call upon these 2 numbers. Most importantly, if you're liking our videos, don't forget to click on subscribe. Press the bell icon. अच्छा लग रहा है शेयर करो, एंजॉय करो. थैंक यू सो मच.